So I'll just do a quick recap of point number 4, sample program to show exception handling. Okay, my screen is visible to everyone? Okay. ओके लॉकडाउन में एक वर्ड बहुत फेमस हुआ. कौन सा वर्ड? क्वारंटाइन, है ना? हाउ डू यू स्पेल दैट? Quarantine, right? What does this word actually mean? This word was in use even before that lockdown. Antivirus companies would use it a lot. So what would happen is, if this is my hard disk and these are my various blocks in my hard disk, memory blocks. Okay. So if there is a infected block, my antivirus software would quarantine that infected block so that that infection doesn't spread in my hard disk. That is what antivirus would do. It would take that and block and quarantine it. It doesn't interact and affect the other part of the hard disk. Okay, and this would be observed. This would be under observation. So let's say this is a prison and there are lots of prisoners, and one prisoner is trying to create nuisance. So what does the jailer do? It'll keep a strict eye on that prisoner. It will quarantine that. So he will be under observance 24/7. Others, I trust others. They will not do anything wrong. But this one is a big nuisance. Is an exception. This one is an. So what we do in Java is, whatever code which I feel at runtime will not throw any exception, I trust that code. I will write it outside the try. But whichever code as a developer I feel that this might throw an exception, I will write within which block? So this is the only monitored block. This is the only block which is monitored for exception. So whichever exception occurs within the try block, I will then catch that exception. If an exception occurs outside the try block, I cannot catch it because it was not monitored. So for that, Java's natural stimuli will work. If an exception occurs over here at this point, what will I do? What will happen? What will happen over here? Java will identify to which type this exception belongs, create an object of that type, and throw this. And as it is not being caught, the program will terminate and this exception will spill on the console. So if you feel that this might throw an exception, increase the range of your try. Bring this inside the try so that it can also be caught. So this catch block will only catch exceptions which are occurring inside the try. So whichever part of the code which you feel is suspicious, write it inside the try. And if that exception occurs, it will go to the appropriate catch. Okay, so let's do a simple program. Let's do a simple program. Sample exception handling program. Okay, so I'll do a simple divide two numbers program. Okay, so I'll take scanner SC is new scanner system.in sysout, enter numerator
take it in the variable integer, numerator equals to sc dot next int, and similarly I'll say enter denominator, and I will call it where. Okay, and then I'll take a double result because answer might be in decimal. Double result equals to numerator divide by denominator, and now sys out result is n plus result. Now, which part of the code do you feel is notorious? Line number 14 is notorious, right? Because if I try to enter if I enter 10 and 2, answer is 5. But if I enter 10 and 0, I get an exception at line number 14, right? So which part is notorious over here? Line number 14. So I will put that part under observation and put it into try block, right? Now, if I enter 0 over here, which exception will occur? So I take a catch block. Arithmetic. I take a catch block to catch which exception? And here we can sys out and say, please enter valid denominator. And the program will continue execution. Sys out. Okay. Continue. Right? So now let's save. Now if I do a run, if I do 10 and 5, I get 2.0, program continues. And if I do 10 and 0, it says please enter valid denominator, and program still continues. So which part am I monitoring now? 15 and 16. What if an exception occurs outside this try? Is it monitored? No. So now let's check. So when it says enter numerator, what type of value is it expecting? Integer. I enter over here. Now input mismatch, but is it being monitored? So what will happen? Java's natural reaction will happen. It will search for what type this belongs to, input mismatch, create object and throw it is, and as there is no catch for this, the program will terminate. Will it ask me to enter denominator? No, because the program will terminate there and then itself. So now what I'll do, I'll increase the range of my try and I'll include this also. So now which two exceptions can occur? So take a catch for each of the exceptions. So one catch for input mismatch. Okay, so we call it as E1, and one catch for please enter valid integer value. Correct? Save. So now let's run. So now if I enter 10, any problem? No. If I enter apple over here now, which exception will occur at line number 15? So do I have a catch to catch it? So these catches will work like switch case now. These catches will work like, so these are multiple catch. This is which point? This is point number 7. Can we have multiple catches? Yes. So these catches will work like a switch case. Whichever catch is able to catch that object. Okay. So which object is thrown over here now when I say apple? Which object is thrown? New input mismatch. So can arithmetic exception reference
point to object of input mismatch. They both are on the same level, right? They both are on the same level. Can arith can input mismatch reference point to object of input mismatch? Yes. So it will go over here and it will say, please enter. And in try, at whichever line the exception occurs, the remaining part of try is skipped. The remaining part of try is, so will it execute line number 17, 18? If I give apple over here, directly look for the corresponding catch. Directly go to the corresponding catch and say enter valid integer value. This is the syntax of a simple exception handling program. Done? Yes, we can use it. You can use it one inside the other. You can use it one after the other also. So if you want to use for this exception, if you want to use a separate try, okay, so that this will catch this one. And then for this, you want to use a separate try. You can do so. Okay, now these two are only within local within this, right? So what will we do? We'll declare them globally. And we'll just use them over here. So like this, you can have multiple try. This is one after the initializing some default value. Okay, so save it. So you can have one try for this and one try for the. So you can do it like this also, or you can put it both under one and use multiple catch. Is it? Am I understood? And you can also have nested try also. This I have explained now. Nested try means one try written inside another try. What is this? Nested catch. So this will do later on. Okay. So far so good. So better. This is much better comparatively. That we use one try and the catches can work as a switch case. Okay. So should I take point number 4 done? Point number 5 I had explained all. So this exception which are occurring are which type of exceptions over here? They both are. Which exception can occur at line number 13? Input mismatch. So if I remove the try, is my compiler warning me that exception can occur over here? What measure have you taken to overcome the exception? Why no? Because the exception which is occurring is unchecked exception. Which is which exception? Unchecked. And for unchecked exceptions, compiler does not warn. So compiler will not warn you about these exceptions. See, it is not warning me. The code is compiling perfectly. But at runtime, if any issue happens, application will terminate. Correct. So these are all what? Unchecked exception. These are normally occurring because of the programmer's logic. So unchecked occurs usually because of the programmer's logic errors. That's why the compiler doesn't want them. So they are called as unchecked exceptions. So all exceptions which are child of runtime are all unchecked exceptions. Okay. So, and if similarly to accept the input, had I used buffered reader, then buffered reader throws IO exception. Throws which exception? And IO exception is checked exception. So now instead of using scanner, I just replace scanner with buffered reader. Buffered reader BR is new, buffered reader new input stream
reader taken from system.in, right? And now instead of using sc, I will use what? br dot read line, and it will give me a string. So I'll do what? Integer dot parse int. Okay. As I do this, as I save, it will start throwing some exceptions. Same over here. Integer denominator. Okay. Now why are these red lines coming over here? Because they can throw IO exception. They can throw an IO exception is check. So compiler is warning that these exceptions can occur. What measures have you taken to handle? Have I taken any measures to handle them? It will not compile the code. It will not compile the code unless and until I show the compiler. Okay, don't worry. I have written try catch. So once I write the try catch, which exception is occurring? No, IO exception, no? Then it will, okay, just have to show the, just you have to show the handling mechanism. Put the catch as blank also. Just you have to show that you have done something to handle it. Just showing empty also. Now they are satisfied. Now the code will compile at least. So these are called as your checked exception. The compiler will not even compile the code unless and until you show the compiler the handling mechanism. So got it? So all your file handling, database connectivity, all are checked exceptions. Okay? File not found exception, IO exception, they all will throw checked exception. Done with this also. Okay? Structure also I've done. Okay? The third block of your exception handling is finally. Okay? We'll discuss that in detail. So finally is forms the third block. So when I say structure of exception handling, I have try, okay, catch and finally. So try, catch and finally. Finally the code will always execute. Finally the code will always execute. If the code enters try, the rule is if the code enters try, it has to enter finally. If the code has entered try block, then it is mandatory for that code to enter the, it will enter the catch block or not, that depends on the exception. If the exception occurs, it will enter the catch block. If it does not enter, catch block will be skipped. But if the code has entered try, it will compulsory 101% enter final. Unless until you exit the program. So if you exit the program over here, that is the only case when the code has entered try but has not entered finally. Why? Well, the program has exited. When the program exited, I cannot move ahead. So apart from that, simple thumb rule, remember, if the code has entered try block, it has to compulsory enter finally. Okay. So this is try, this is catch. मेन का रह गया सर, मेन का रह गया क्या? ठीक है. So if I now sys out over here, thank you. So you go to a store, okay, you just browse and you do not buy anything. While leaving, what will the shopkeeper tell you? Thank you. Okay. If you buy and you leave, again he will say thank you. So thank you again he will display irrespective you buy or not. So now if I run this code and I enter 10 and 2, will there be any exception? Will it go into the catch? Will it go into the catch? This out.
Okay, so let's take this. So it will not go into the catch. Okay, so 10 and 2 directly result and directly into the final. So the code, if it has gone into try, will compulsory go into final. If it exception occurs, will go try catch finally. If it does not occur, direct try final. That so this forms the entire structure of exception handling. Okay. So this also done structure of EH. I have doubt. Yes. Yes, please. वो फाइनली में लिखेंगे और नीचे नीचे कोई तो एसओपी लिख देंगे तभी वो चलेगा ना वो। हाँ, तभी भी चलेगा वो। बहुत ही इसने हाँ ऐसा सवाल पूछा है, तो चलो इसका हल निकालते हैं। एक मिनट एक मिनट स्कैनर पे आ जाते हैं, ठीक है, इससे आ जाते हैं अपन पहले। तो उसका सवाल जो है मुझे समझ में आया, तुम लोग को समझ में आया क्या नहीं पता नहीं, ठीक है। ठीक है, तो मुझे तो समझ में आया, तुम लोग को समझाता हूँ मैं। बहुत ही $1,000,000 सवाल पूछा है उसने, वो मैं लेने वाला था इस टॉपिक में, लेने वाला था मैं इंटरव्यू क्वेश्चन। तब इसने ट्रिगर कर दिया है, तो उसको ट्रिगर रिजॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा हेवी वेट सेशन होगा, ध्यान देना। तो क्या हो गया इधर, ऑप्शन P1 में क्या बोलेंगे, प्लीज एंटर वैलिड डिनोमिनेटर, और एक और आ सकता है कौन सा, इनपुट मिसमैच। E2 क्या बोलेंगे, प्लीज एंटर वैलिड इंटीजर। थैंक यू विजिटर के, सही है, यस और नो, वेरी गुड। नाउ लेट्स सेव इट एंड लेट्स रन इट। तो एंटर किया 10 और 2, सब कुछ सही है, तो क्या आएगा, रिजल्ट इज 5। इज देयर एनी एक्सेप्शन, इज इट मैंडेटरी टू गो टू द कैच, नो, डायरेक्टली वी गो टू, तो आंसर क्या आएगा 5.0 एंड थैंक यू विजिटर, वेरी गुड, थैंक यू विजिटर है ना। और फिर अगर अभी मैं एंटर करता हूँ एप्पल, तो लाइन नंबर 17 पे आएगा एक्सेप्शन कौन सा, इनपुट मिसमैच। वो ट्राई के अंदर है, मतलब मॉनिटर्ड है, डायरेक्टली जाएगा उस कैच में जो कैच कर रहा है, इस ये कैच कर रहा है, और क्या आएगा, प्रेजेंट अ वैलिड इंटीजर, और क्या आएगा, थैंक यू विजिटर, सही है। क्या था, तो अद्वैत ने रेस किया क्या अद्वैत ने रेस किया है, अद्वैत ने रेस किया क्वेश्चन कि सर जब मैं ये फाइनली ब्लॉक निकाल भी दूंगा तभी भी वही आउटपुट आएगा, है ना अद्वैत, ये तेरा सवाल है ना। फाइनली ब्लॉक से क्या वैल्यू ऐड हो रहा है, अगर मैं ये कोड बगैर फाइनली ब्लॉक के भी लिखूं और एप्पल लिखूं मैं, तभी वही कोड आएगा। So what is the big deal in writing finally, right? This is what your question is, Advait, if I understand it correctly. यस हाँ, तो अब इसका सवाल देख, जवाब देगा अभी इसका। अब इसका जवाब ये है कि मैं तुमको पहले रियल वर्ल्ड से समझाता हूँ, फिर आऊंगा इस पे। कि एक खेत है, क्या ये, तो ये पूरा एक बंदे का खेत है, इसके डॉक्यूमेंट पूरे एक के हैं। ओके, फिर यहां से मेट्रो चली जाती है उसके खेत के ऊपर, मेट्रो का ये खंबा आ गया, और एक मेट्रो का उसके ऊपर से मेट्रो गुजर गई है, ठीक है। तो अभी ये खेत क्या हो गया, दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया, एक ये हिस्से में, तो ये हिस्से में, और इतना गवर्नमेंट ने ले लिया, यस और नो। तो जो रेड वाला पार्ट है इसका गवर्नमेंट उसको कॉम्पनसेट करेगी, करेक्ट, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑक्यूपाइड करके रखी है उसको। और बाकी ग्रीन, तो ये ग्रीन पार्ट 1 और ये ग्रीन पार्ट 2, ये दो अलग अलग खेत है क्या, एक ही खेत है, एक ही ओनर है,
तो अगर उसको अभी अपना खेत आगे अपना खेत बेचना है तो वो पूरा खेत बेचेगा उसको, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो पूरा एक का ही है। यानी पार्ट 1 बिकेगा तो पार्ट 2 बेचना पड़ेगा ना, डॉक्यूमेंट में पूरा एक ही है, वो दो हिस्सों में स्प्लिट नहीं किया है डॉक्यूमेंट में उसको, तो उसको पूरा का पूरा ही बेचना पड़ेगा। तो जब वो उसका डील करेगा खेत की, तो उसको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेल करना पड़ेगा, पूरा ब्लू। यस, नो, मे बी। क्या बोलेगा? नहीं, आप रेलवे का ये जो मेट्रो के लेफ्ट साइड का बेच रहा हूँ, राइट साइड का नहीं बेच रहा हूँ मैं। तो बोलेगा लेफ्ट का डॉक्यूमेंट किधर है आपके पास, चलो दिखा दो मेरे को। तो अगर ये पूरा 100 गुंठा है या 100 एकड़ है, तो उसका डॉक्यूमेंट तो 100 एकड़ के है ना, गवर्नमेंट ने उसको उसका दे दिया कॉम्पनसेशन, तो डॉक्यूमेंट पूरा किसका है? 100 एकड़ का है। अगर वो बोले कि मैं इसे लेफ्ट साइड बेच रहा हूँ, 60 एकड़ बेच रहा हूँ, तो वो पूछेगा वो क्या, मुझे 60 एकड़ का डॉक्यूमेंट दिखाओ। तो डॉक्यूमेंट लेके आता, डॉक्यूमेंट कितने एकड़ का होता है? 100 एकड़ का। तो बोले हाँ, फिर 100 है ना। तो अगर लेफ्ट बिकेगा तो हेड बिकेगा। तो ये जो लेफ्ट पार्ट है ये ट्राई है, और ये जो है ये फाइनली है। बीच में से कौन गुजर रहा है? बीच में से कौन गुजर रहा है? मेट्रो। कैच गुजर रहा है। तो ये कैच का गुजरना डजेंट मीन कि ये ट्राई और फाइनली अलग अलग है। ट्राई और फाइनली क्या है? एक है। ट्राई में जा रहा है तो फाइनली में मैंडेटरी जाना ही है। ठीक है, अब आते हैं इसके सवाल पे जवाब पे। ओके, व्हाट डज ब्रेक डू? व्हाट डज ब्रेक डू? Stops a iteration. Stops a, what does return do? Returns a from function, है ना। तो ये दो तुमको कौन से मालूम है ना, ब्रेक और रिटर्न के। तो मैं एक क्लास बनाता हूँ, ठीक है, टेस्ट कर रहा हूँ। मुझे एक एरे में से, यस, सो ब्रेक, व्हाट डज ब्रेक डू? So if I have an integer ARR, now I want to search for this number 30. So it's write a method which will return me the index of this number if it is there. If it is not there, return me -1. So is 30 there? Which index? What is this? So write a function. Okay, write a function called linear search and pass the array and the number we are searching for. And what will this give me in return? Index, right? So what will I do then? Not a for loop. I equals to 0, I less than ARR dot length, I plus plus. What will I do? If my, so I'll take at which index that number is found. Okay, so I'll initialize the index to -1. So if my, and I'll take a flag also, let's say flag equals to 0. And what will I do? If my ARR of I is equal to the number I'm searching for, at what index is it found? Index becomes I and flag equals 1, and I will break, right? And then what will I do over here? I will Flag is equal. return the, okay, so I will just check if the flag is equal to 1 means number has been found. So I will return, what will I return? Index. And if it is not found, what will I return? -1. -1, no? And then I will check over here if my
Index is equal to -1 means number not found. Number not found. Else what will I say? Else number found at index, right? Else number found at index, found at index, correct? Index. So let's save it. So 30 found at, what is the answer? So, Found at index 0. Okay, I did not get the bracket for if, no? There are multiple statements in if, right? If had multiple statements. Again, still showing. इधर 20, हाँ इसमें जा ही नहीं रहा है. सही है. ओके, अगर मैं कर दूं 40 तो क्या आएगा? 3 आ गया. और अगर मैं कर दूं 44 तो या 45 तो सही है. ओके, अब इसको और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं हम लोग? देखो, मैं यहाँ पर ब्रेक भी कर रहा हूँ और रिटर्न भी कर रहा हूँ. रिटर्न मतलब फंक्शन के बाहर आ जाओ, ब्रेक मतलब लूप के बाहर आ जाओ. तो लूप किधर है? फंक्शन में ही है. तो अगर मैं बोलूँ कि आप जो है, एक बंदे को पुलिस बोलती है आप सिटी छोड़ के जा सकते हो, आपको सिटी छोड़ के जाना मना है जब तक आपका वो केस चल रहा है. तो कैन ही लीव द स्टेट एंड गो? If he can't leave the city, means he can't leave the state. So can he leave the country and go? No. So if I return from the method, means the loop will break or not? अगर मैं रिटर्न यूज करता हूं मतलब मैं किसके बाहर निकल रहा हूं? रिटर्न मेथड के. और लूप किस में है? लूप मेथड में है ना. तो अगर मेथड के बाहर निकल गया तो नेचुरली मैं लूप के बाहर भी निकल गया ना. रिटर्न का यूज ब्रेक का काम भी कर रहा है ना. इफ आई लीव द स्टेट मीन्स आई हैव लेफ्ट द कंट्री ऑल्सो. So if I return means I have broken the loop also. yes, sir. है ना. तो इसके लिए अगर आपको ब्रेक रिटर्न करना हो ना अक्सर, तो अभी देखो ये इतना कचरा निकाल दूंगा. अब सिंपल सा एक काम करूंगा. जैसे ही मुझे मिल जाता है, देखो हम सिंपल सा एक काम करेंगे. सर्च कर रहा हूं, जैसे मेरा ट्रू हो गया रिटर्न आई कर दो. क्या कर दो? रिटर्न. तो अगर लूप ने रिटर्न नहीं किया, मतलब अगर ये कभी हिट नहीं हुआ, तो फिर आके क्या कर दो? क्या कर दो? रिटर्न. सिंपल सा काम है. तो कभी ये इफ ट्रू ही नहीं हुआ तो क्या कर देगा? रिटर्न. और कभी ट्रू होता है तो रिटर्न. तो समझो अभी मैंने यूज करना है 20 सर्च करना है. 20 तो फर्स्ट वैल्यू में आई का वैल्यू क्या है? 0. तो एरर ऑफ आई का वैल्यू क्या हुआ? 10. तो 10 इज इक्वल व्हाट एम आई सर्चिंग फॉर? 10 इक्वल टू 20. तो इसमें गया क्या? नहीं गया. आई प्लस प्लस आई क्या हो गया? आई क्या हो गया? 1. एरर ऑफ आई क्या हो गया अभी? यानी एरर ऑफ 0 ना. आई मतलब एरर ऑफ 0. एरर ऑफ 1 क्या हो गया? क्या हो गया? 20. 20 इक्वल टू 20. ट्रू क्या फॉल्स? तो रिटर्न आई मतलब जब रिटर्न कर रहा है तो लूप भी ब्रेक हो रही है ना. डायरेक्टली इधर आ गया. तो इंडेक्स में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है. और क्या लिख के आएगा? इज 1 इक्वल टू -1? नो. तो क्या लिख के आएगा? है ना. फास्टर काम है ना ये. इसको भी हम और फास्ट कर सकते हैं. हम इसको यहाँ पर लगा सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर. ठीक है, इफ लगा दिया मैंने. ठीक है, जितना फास्ट कर सको उतना फास्ट करो. अभी इंडेक्स इक्वल टू 1. ट्रू मतलब क्या? नॉट फाउंड. और फॉल्स मतलब क्या?
तो और फास्ट हो गया आपका कोड, और फास्ट होगा। तो मेरे इंडेक्स में आ गया ना। तो अगर इंडेक्स क्या है, -1 है, तो क्या बोलेंगे? और अभी 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 इंडेक्स में क्या है, 1, इज 1 इक्वल टू -1, फॉल्स, तो यहाँ जाएगा और क्या बोलेगा? तो लेट्स से आई एम सर्चिंग फॉर 50, तो क्या आएगा? फास्टर है क्या नहीं? कितना कोड शॉर्ट हो गया? तो रिटर्न क्या कर रहा है? फंक्शन से बाहर जा रहा है, तो लूप को टर्मिनेट भी कर रहा है और फंक्शन को भी टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है ना? ऐसे टाइम पे आप रिटर्न यूज कर लिया करो, ब्रेक बार बार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ओके, तो अब मैं तुमको एक सैंपल क्वेश्चन देता हूँ। इस पे आते हैं, जो हमारा इस पे चल रहा था, ठीक है? तो व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल, ये फाइनली को मैंने कमेंट का तभी वही आउटपुट आ रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये सारा का सारा कोड टेस्ट में डालता हूँ, इसमें डालता हूँ मैं कोड, ये टेस्ट फंक्शन, ठीक है? फंक्शन है क्या ये? क्रिएट कर लो। और ये मुझे बूलियन देने वाला है, क्या देने वाला है? बूलियन रिजल्ट, जो मैं डिस्प्ले करने वाला हूँ, ठीक है? तो अब जब ये सब कुछ डिस्प्ले, जैसे ही यहाँ पर, तो आई विल रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो क्या दे रहा है ये रिटर्न टाइप? सही है, उसको सेव कर दिया। अब ये क्या बोल रहा है? ये बता रहा है अनरीचेबल कोड, क्या बता रहा है ये कोड रीचेबल, क्योंकि आगे से हो रहा है, तो ये कोड में जाएगा ही नहीं, क्योंकि अगर ये ट्रू में गया या इस ट्रू में गया, इस ट्रू में गया, तो यहाँ जाएगा ही नहीं, ठीक है? अब बोलो इस कोड का आउटपुट क्या आएगा? तो अगर मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ 10 और 5, तो वो कोड का आउटपुट क्या आएगा? क्या आएगा आउटपुट? क्या आएगा आउटपुट? रिजल्ट इज, क्या आएगा कोड में? रिजल्ट इज 2.0, और व्हाट इज दिस रिटर्निंग? तो डायरेक्ट इसमें क्या आ जाएगा फिर? ट्रू, तो आंसर क्या आएगा? तो सही है। तो अगर मैं एक कोड रन करता हूँ, लिखता हूँ 10 और 5, तो आंसर क्या आएगा? रिजल्ट इज 2.0 एंड ट्रू, करेक्ट? और यहाँ पर वो मुझे कुछ लिखने दे नहीं रहा है। रन करते हैं, 10 और 5, क्या आया? रिजल्ट इज, अब मैं वापस रन करता हूँ और डालता हूँ ऐसा। अब बोलो, तो लाइन नंबर 23 पे आएगा, लाइन नंबर 24 पे आएगा एक्सेप्शन, कौन सा? इनपुट मिसमैच, तो ये तो दिखाएगा नहीं। और क्या आएगा? और क्या आएगा आउटपुट? ये आएगा, सही है। और क्या आएगा? फॉल्स आएगा, क्या आएगा? फॉल्स, राइट? तो क्या था इनपुट? 10 और देने वाले इंटीजर, और क्या आ गया? फॉल्स आ गया, राइट? ओके, अब अगर मैं एंटर करता हूँ 10 और 0, तो at this line there will be exception, we go to which catch, और क्या आएगा?
सही है, और फॉल्स आएगा, फॉल्स आ रहा है। ओके, यहाँ पर फाइनली था क्या? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर लिख देते थे वो सिस आउट थैंक यू विजिट अगेन, क्या लिख देते? थैंक यू और क्या? विजिट अगेन। तो ये लिखना देगा क्या अपने को? क्योंकि ये क्या बोल रहा है, लास्ट में क्या आना चाहिए, और वो रिटर्न क्या बोलेगा, जो बेटर फॉल्स। तो बोला कि ये लाइन तक कोड जा नहीं रहा है, ये लाइन तक कोड अलाउ नहीं करेगा। तो अब फिर क्या करना है हम लोगों ने, अगर आगे जाना है तो क्या लिखा मैंने, फाइनल। अब मैंने ये कोड लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने, ये कोड। ठीक है, तो अब अगर मैं डालता हूँ 10 और 5, क्या आएगा आंसर बोलो? तो आंसर क्या आएगा, ये 2.5 डबल में आ गया, और क्या आ गया, क्या लिख के आएगा, रिजल्ट इज 2.0, और क्या है, ट्रू। और क्या कर दिया उसने, रिटर्न, और यहाँ पर क्या आ गया, ट्रू आ गया, राइट। यस, तो जैसे रिटर्न आता है मतलब वो फंक्शन के बाहर निकल जाता है। तो इस कोड का आउटपुट क्या आएगा, 10 और 5 का। ये है इंटरव्यू क्वेश्चन। अगर आपको ये स्निपेट दिखा दिया और बोला कि इसका आउटपुट क्या आएगा, तो सिंपल आपका आंसर है इसमें, द रिजल्ट इज 2.0 एंड आई एम ब्रेकिंग, तो रिटर्न ट्रू। तो इधर रिजल्ट में ट्रू आ गया और आंसर आएगा ट्रू। यस और नो? तो आउटपुट क्या है, रिजल्ट इज 2.0 और ट्रू। सही है? सही नहीं है, क्योंकि अगर ट्राई में गया है तो फाइनली में जाना ही है, रिटर्न रिटर्न को भी वो रिस्पेक्ट करता नहीं है। अगर ट्राई में गया है तो फाइनली में जाना ही है। कैच में जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि कैच में कोई एक्सेप्शन नहीं आया, दोनों भी नंबर सही थे, पर फाइनली में जाएगा जाएगा, तो क्या लिख के आएगा, थैंक यू। और नाउ फाइनली विल ओवर राइट द ट्रू, व्हाट नाउ, फॉल्स। तो क्या लिख के आएगा आउटपुट व्हेन यू एंटर 10 and 5, रिजल्ट इज 2.0, थैंक यू विजिट अगेन एंड देन फॉल्स। समझ में आया देखो डिफरेंस क्या होता है फाइनली लिखने से? अभी रन करके देख लो, तो एक बार तसल्ली कर लेते हैं कि वैसा ही आता है क्या। प्ले किया, मैं वैलिड इनपुट देने वाला हूँ, तो क्या 10 और 5, तो क्या आएगा, दिख रहा है, रिजल्ट इज 2.0, थैंक यू विजिट अगेन एंड इररिस्पेक्टिव उसने यहाँ पर रिटर्न कर दिया है, और वो चेक कर रहा है फाइनली लिखा है क्या। अगर फाइनली नहीं लिखता, मैं सिर्फ ये लिखता थैंक यू विजिट अगेन, तो क्या आता, अद्वैत। अब अगर फाइनली नहीं लिखता और सिर्फ ये लिखता थैंक यू विजिट अगेन, तो क्या आता, तो 2.0 प्रो आएगा। हाँ, क्योंकि ऊपर से आ गया ना, ये नीचे नीचे गया ही नहीं, नीचे फाइनली है ही नहीं, इसके लिए ये कोड टच ही नहीं हो रहा है, ये कोड रीच ही, इसको होता है अनरीचेबल कोड, दिख रहा है, तो इसके लिए इसके कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब क्या होता, अब फाइनली है क्या, फाइनल नहीं है। नहीं है ना, तो अब ये मैं करता हूँ 10 और 5, 10 और 2 जो भी, तो क्या आएगा अभी आंसर, फाइनली तो है ही नहीं। तो अगर फाइनली लिखा है तो लास्ट में अगर आपको कोई आपको क्लीन अप कोड करना है, जो ट्राई और कैच में लिखा है उसको कुछ ओवरराइड करना है, लास्ट अथॉरिटी किसकी होती है, फाइनली की। ट्राई और कैच ने कुछ किया है, उसके बाद फाइनली स्टैम्प मारेगा। दीज टू एम्प्लॉइज एंड देयर बॉस, दे आर टेकिंग अ स्ट्रॉल आफ्टर लंच, लंच ब्रेक में वो लोग स्ट्रॉल ले रहे हैं बीच के पास। तो लंच ब्रेक 1 से 2 होता है, उन्होंने लंच किया आधा घंटा बचा है, तो वो लोग क्या करते हैं, बीच के पास एक चक्कर लगा रहे हैं। तो उधर उनको एक लैंप मिलता है, लैंप, वो लैंप घसते हैं तो क्या निकलता है, जिन निकलता है। तो वो जिन बोलता है कि मैं तुम सबकी एक एक विश पूरी करूंगा। अब वो जो जूनियर एम्प्लॉयज होते हैं वो थोड़े से टेन्योर्ड कम रहते हैं, तो वो गड़बड़ करते हैं, तो वो हिस्ट्री डिसीजन लेते हैं जल्दी से। तो जो फर्स्ट एम्प्लॉय है होता है, मेरा नंबर पहले, मैं पहले मांगूंगा, तो बोलता है मुझे अंबानी जैसा एंटीलिया का घर बना के दे दो,
मेरे मनपसंद स्विट्जरलैंड के फार्म में और मुझे वहां पहुंचा दो। तो बोलता है ओके एज यू विश इट विल बी डन। तो उसका घर बनाता है वो एंटीलिया जैसा स्विट्जरलैंड के अंदर, उसको वहां पहुंचा देता है। सेकंड एम्प्लॉय भी होता है जूनियर, बोलता है मुझे भी विश चाहिए। तो बोलता है मुझे इलॉन मस्क जितना रिच बना दो, और जितना उसके पास एस्टेट है और जितना उसके पास प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, उतना देके मुझे भी मेरे मनपसंद जगह पे पहुंचा दो, जो भी वो कंट्री का नाम लेता है। तो वो पहुंचा देता है। अब बॉस की बारी आती है। बॉस बोलता है माई विश इज आई वॉन्ट देम बैक इन ऑफिस आफ्टर लंच। आई वॉन्ट देम बैक इन ऑफिस आफ्टर लंच। तो फाइनल से किसका होता है? बॉस का, जो लास्ट में जाता है, जो लास्ट में आता है उसका फाइनल। तो ऐसे ही फाइनली जो बोल दिया वो फाइनल है। तो अगर यहाँ पर ट्रू ने रिटर्न करके बोला भी है कि मैं ट्रू रिटर्न कर रहा हूं, ट्राई ने, तभी भी वो बोलता है हैंग ऑन, देखते हैं फाइनली है क्या। अगर फाइनली है तो फाइनली उसको ओवरराइड कर देगा। एक्सेप्शन आया तभी भी, एक्सेप्शन आया तभी भी। ठीक है, तो अभी मैं प्ले करता हूं और मैं करता हूं एप्पल। तो अभी कौन सा एक्सेप्शन आ गया? तो समझो ये लोग ट्रू करते हैं, ये लोग भी क्या बोलते हैं, हम भी क्या रिटर्न करेंगे? ट्रू रिटर्न करेंगे ना। क्या रिटर्न करेंगे? हम सब ट्रू रिटर्न करेंगे। ट्राई भी ट्रू कर रहा है, फाइनली भी ट्रू कर रहा है, बट ट्राई भी ट्रू और कैच भी ट्रू कर रहा है, वो फाइनली क्या बोल रहा है? फॉल्स होना चाहिए। अब प्ले करते हैं। अब मैंने डाल दिया इधर एप्पल। तो एप्पल आ गया कौन से लाइन पे? लाइन नंबर 21, 22 पे। कैन आई शो एप्पल इन इंटीजर वेरिएबल? yes or no? No. Which, what will it throw exception of type? Do I have a catch to catch it? It will say what? And return क्या हो जाएगा? True. Will it return? It will first check finally है क्या? Finally क्या बोलेगा? Thank you visit again। और फिर क्या बोलेगा? Return false। तो आंसर क्या आएगा? Please enter valid integer, thank you visit again and false। समझ में आ रहा है? ये मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए मैंने रोक के रखा था। समझ में आया फाइनली का डिफरेंस क्या है अभी? यस सर। हाँ। अब ये जो मल्टीपल कैच ब्लॉक है, तो okay, multiple catch block, we have discussed this। So one try can have multiple catch block, and whichever type of exception occurs, it will go in that exception। Okay, what if an exception occurs which is not from this type? ऐसा एक्सेप्शन अकर हुआ जो इस टाइप में से नहीं है। जैसे कि मैंने एक एक्सेप्शन बनाया स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू नल। फिलहाल क्या स्ट्रिंग में नल है। नल का कोई लेंथ होता है क्या? और मैंने दिखा दिया नेम डॉट लेंथ। अब ये हटा दो, ये ट्रू ट्रा। समझ में आ गया ना? ये गड़बड़ करेंगे बाद में ये। तो जो इनका काम था वो काम सर्व कर दिया इनको। अब फाइनली आपको रखना है, अगर जरूरत है तो रखो, वरना फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है अभी अपने को। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं एंटर करूँ 10 और 5, इनपुट मिसमैच आया, एरिथमेटिक आया, बट यहाँ पर क्या आएगा? नल पॉइंटर। क्या आएगा? कैच किया उसको। तो फिर लास्ट वाले कैच में पेरेंट एक्सेप्शन लिख देना। एक्सेप्शन, तो वो चाइल्ड के सारे ऑब्जेक्ट्स कैच कर लेगा ना एक्सेप्शन। तो उसको बोलते हैं डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्या बोलते हैं इसको? सम एक्सेप्शन अकर्ड। तो इन दो एक्सेप्शन के अलावा जो भी आएगा वो कहां जाएगा? एक्सेप्शन वाले कैच में। बिकॉज पेरेंट एक्सेप्शन, पेरेंट रेफरेंस कैन, अगर इसका रेफरेंस है तो पॉइंट टू एनी क्लास का ऑब्जेक्ट अंडर द हायरार्की। राइट? तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जैसा डिफॉल्ट होता है ना स्विच केस में, वैसा डिफॉल्ट है। ऊपर वाले किसी में नहीं गया तो फिर इसमें गारंटीड जाएगा। तो सेव किया और रन करके देखते हैं क्या वो मार रहा है ये। ओके, टेस्ट पहले बूलियन बोल रहा था ना। ठीक है भाई, ओके गुड बॉय। ओके, अभी अभी LHS भी नहीं चाहिए। सही है, ये रिजल्ट भी नहीं आएगा। रिजल्ट डिस्प्ले कौन करेगा फिर? तो ओके ठीक है, लेट्स रन इट नाउ।
और रन करते हैं तो यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं आया, यहाँ पर भी नहीं आया, 5 तक भी नहीं आया, यहाँ पर भी नहीं आया, 5 डिस्प्ले भी हो गया। अब क्या आया? तो वो इन दोनों में से है क्या? कोई दो कैच कैच कर रहा है, तो फिर कहाँ जाएगा वो? डिफॉल्ट, तो वो कैच कर रहा है। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये सबसे लास्ट में, सबसे क्या है? लास्ट में। So if there's guests coming over to our place, so what do? We eat first or we let the guests eat first? Okay, and if उस हाउस में एक kids भी है, so the guests eat first. Once the guests leave, the kids eat, and then the mother eats. तो मदर का नंबर कहाँ आता है? हमेशा लास्ट में आता है। अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्या होगा? ये दोनों हो गए अनरीचेबल कोड, क्योंकि सारे एक्सेप्शन ही कैच कर लेगा ना, सारे यही कैच कर लेगा। तो सबसे पहले जनता की भलाई सोचता है मंत्री, फिर खुद की भलाई सोचता है। यहाँ उल्टा हो गया, उसने बोला मैं पहले, अब जनता तक तो राशन पहुंच ही नहीं रहा है। ये सारे क्या हो गए? अनरीचेबल कोड हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट द डिसीजन शुड बी देयर टू बेनिफिट द स्टेट, then after that benefit the people, and then after that benefits me. So my first priority will be I'll take a state, the decision which benefits the state. People को थोड़ा सा अनकन्विंसिंग लगे, तो अगर मुझे मेट्रो चालू करना है तो जिनके घर उस एरिया में है वो थोड़ा सा प्रोटेस्ट करेंगे, बट स्टेट के लिए ये बेनिफिशियल है, तो आई विल टेक अ स्टेप। देन माय नेक्स्ट लेवल विल बी whatever benefits the people, and then last whatever benefits me. So I will come at the end. If I put myself at the first, तो ना मेट्रो बनेगी ना कोई डेवलपमेंट होगा, सारा फंड है चला जाएगा। तो अब ये इन तक बात जा ही नहीं रही है, तो ये क्या बन रहा है? अनरीचेबल कोड। तो अगर आप एक्सेप्शन लगा रहे हो तो मेक श्योर कि वो सबसे कहाँ रहे? लास्ट में। अगर आपने उसको टॉप में कर दिया, एक तो ये कोड कंपाइल नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि अनरीचेबल कोड बता रहा है, तो ये कोड कंपाइल ही नहीं होगा। होगा क्या हो रहा है? कंपाइल नहीं हो रहा, कंपाइल टाइम एरर आ रही है। ये क्या था? डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, तो ये भी हो गया। मल्टीपल कैच ब्लॉक भी हो गया, आई शोड यू ऑल। फिर डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग भी हो गया, आई शोड यू ऑल। हैंडलिंग मल्टीपल एक्सेप्शन इन अ सिंगल कैच, ये भी कर सकते हैं हम लोग। अब ये कितने कैच है? इन दोनों में इसको भी हैंडल करो, इसको भी हैंडल करो, तो एक लगा दो पाइप ऑपरेटर। क्या लगा दो? पाइप। और आता है ना और वाला, एक बार लगा दो सिर्फ। ठीक है, तो ट्राई है, कैच है, इसको निकाल दो। और एक ही बार देना है ऑब्जेक्ट का नाम, दो बार नहीं देने। तो अभी क्या करेगा ये? यही एक कैच दोनों कैच कर लेगा, इनपुट अरिथमेटिक भी और इनपुट मिसमैच, वो इवन में आ जाएगा। ठीक है, और फिर आप उसका हर हर एक्सेप्शन का एक मैसेज होता है, आप डायरेक्टली वो मैसेज दिखा दो, e2 डॉट गेट मैसेज। ओके, और फिर बाकी आप आगे आपको जो भी कैच लगाना हो, कौन सा वाला, जो डिफॉल्ट वाला हो, एक्सेप्शन e2, इसको e1 कर दो फिर। ठीक है, तो अभी एक कैच ब्लॉक है, और कितने हैंडल कर रहा है एक्सेप्शन? यही, राइट। तो नाउ इफ आई कम, ये निकाल दो नल, और फिर नल रहने देते हैं, और फिर नल थ्रो होगा फिर। और कोई कैच कर रहा है क्या उसका? इसी को लगा दो, इसी को लगा दो, तो नल भी तो ही पॉइंट कर ले। ठीक है, तीनों ये कैच कर ले।
रन करते हैं 10 और 5 कोई एक्सेप्शन आया, यहाँ पर क्या नल आया, तो क्या आ रहा है आगे कोड क्रैश तो नहीं हो रहा ना, इसका मैसेज ही नल है, इसका मैसेज में क्या आता है, ओके यू वांट टू सी द मैसेज, सी द मैसेज ऑफ अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ रहा है, क्या है डिवाइड बाय 0, लेट्स सी इफ देयर इज एनी मैसेज फॉर, इसका मैसेज भी नल है, तो ये लोग मैसेज थ्रो करते हैं, ठीक है। तो एक कैच में आप मल्टीपल एक्सेप्शन भी कैच कर सकते हैं एक पाइप लगा के, और एक ही ऑब्जेक्ट सबका, मेक सेंस। सो दिस वाज विच टॉपिक, हैंडलिंग मल्टीपल एक्सेप्शन इन सिंगल, ये भी हो गया, ठीक है। अरे सर वो गेट डॉट मैसेज है ना, हाँ वो हमें टर्मिनल पे जो जो मैसेज दिखा रहा है वो दिखाएगा क्या? यस यस, जो उनका देखो, अगर मैं कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करूँ, जैसे हाँ यहाँ वो अगर मैं, देखो अगर मैं ये कोड उठाऊँ और यहाँ पर मेन के ऊपर ही लिख दूँ, तो दिस विल थ्रो मी विच एक्सेप्शन, डिवाइडेड बाय मतलब अरिथमेटिक है एक्सप्रेशन। ना। तो उसके साथ में उसका मैसेज भी आता है, देखो आप अगर यस सर, डिवाइडेड बाय 0। गौर करोगे ना, देखो मेंस पे रन किया, लाइन नंबर 13 पे आएगा एक्सेप्शन, और प्रोग्राम क्रैश होगा, देखो दिख रहा है ये, हाँ यस सर, इसको डिवाइडेड बाय बोलते हैं उसका गेट मैसेज, तो क्या बोलते हैं गेट गेट मैसेज, डॉट मैसेज। यस मैम।